प्रावधान बचे थे, तो अब इसमें उसको रिवाइज करके केवल एक ही सेक्शन में लिख दिया गया है, 4 सब सेक्शन है। So power of PRG to impose penalty. The PRG may impose penalty if a periodically published without obtaining a certificate of registration under section 7. तो बिना सर्टिफिकेट के कोई पीरियोडिकल छापता है तो the publisher fails to furnish the annual statement as required under section 12 within 1 year from the end of the financial year in respect of which the annual statement was required to be furnished. वो ईयर समाप्त होने के बाद 1 साल तक वो एनुअल स्टेटमेंट नहीं देता है तो provided that no order of imposition of penalty shall be passed without giving an opportunity of being heard to the publisher. तो पहले नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस के बाद ही पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना जरूरी है। वेयर पीरियडिकल इज पब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 7, द पीआरजी में इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज विद डायरेक्शन टू द पब्लिशर टू सीज द पब्लिकेशन ऑफ सच पीरियडिकल। अब जहाँ पर बिना सर्टिफिकेट के पब्लिश हो रहा है तो वहां पर 5 लाख तक ये पेनल्टी प्लस इसमें जो है वो बंद भी करा सकता है एक बार। The quantum of penalty imposable under clause B of subsection 1 shall be not less than 10,000 rupees but not exceeding 20,000 rupees for the first default. अब इसमें पेनल्टी जो है वो 10,000 से कम नहीं हो सकती, लेकिन 20,000 से ज्यादा भी नहीं हो सकती है पहले अपराध के लिए, पहले डिफॉल्ट के लिए। Provided that for every subsequent default an enhanced penalty of twice such quantum may be imposed but shall not exceed 2 lakh rupees. फिर हर एक बार वो पेनल्टी डबल होते जाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में 2 लाख से ज्यादा वो नहीं हो सकती है। तो इस तरह से ये पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। Whoever fails to cease publication of periodical even after 6 months of issue of a director under subsection 2 or publishes any other periodical without obtaining a certificate of registration under section 7 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months. ये केवल एक ही प्रावधान है इसमें कि जहाँ पे कैद हो सकती है 6 महीने की, और वो बंद करने का नोटिस देने के बाद भी 6 महीने तक कोई बंद नहीं करता है ऑर्डर देने के बाद, तो फिर उसके बाद जो है 6 महीने की कैद इसमें हो सकती है, जिसमें समरी ट्रायल चलता है एज पर सीआरपीसी। फिर अपील के लिए एक सेक्शन है, एक ही सेक्शन है इसमें, अपीलेट बोर्ड। तो पहले ये जो अपील का जो प्रावधान है ये इसमें नहीं था, अब पीआरजी के ऊपर एक अथॉरिटी और बना दी गई है और वो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड। There shall be an appellate board to be called the PRG appellate board, Press and Registration Appellate Board, PRAB बोल सकते हैं हम इसको, consisting of chairperson, Press Council of India and 2 members to be nominated by the PCI from among its members. तो ये बोर्ड जो है ये PCI बनाएगा जिसमें चेयरमैन रहेंगे और 2 मेंबर रहेंगे। Provided that at least one of the 2 members shall be a person referred to in clause D or clause E of subsection 3 of section 5 of the Press Council Act 1978. ये PCI का जो कॉम्पोजिशन दिया गया है तो वो पहले 1965 का एक्ट था, उसके बाद फिर ये 78 का दूसरा एक्ट लाया गया है। अब इसमें जो डी और ई के जो है उसमें से कम एक मेंबर रहेगा, ये इसमें परंतु लगाया गया है। Any person aggrieved by an order of refusal to issue the certificate of registration under subsection 5 of section 7 or cancellation or suspension of registration under section 11 or order of imposition of penalty under section 14, तो 7, 11 उसके खिलाफ 15 में अपील की जा सकती है। May within 60 days from the date on which such order is communicated to him prefer an appeal before the PRG Press and Registration Appellate Board. तो 60 दिन के अंदर अपील करनी पड़ेगी, कर सकता है। Provided that the Press and Registration Appellate Board may admit an appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal on time. अब 60 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो उसका तो हक नहीं है, लेकिन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड चाहे तो अपील को एडमिट कर सकता है यदि उनको लगता है कि जो भी कॉज है फॉर सफिशिएंट कॉज ही वाज प्रिवेंटेड। और रिसीव्ड ऑफ एन अपील अंडर दिस सेक्शन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड में आफ्टर कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड्स एंड आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी दैट इट डीम्स फिट कंफर्म मॉडिफायर सेट असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। अपील में रेमेडी क्या क्या रहेंगी कि या तो उस ऑर्डर को कंफर्म किया जाएगा या उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाएगा या उस ऑर्डर को सेट असाइड भी किया जा सकता है, ये रेमेडी उसमें दी जा सकती है। द मैनर एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर प्रेफरिंग अपील्स, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स एंड मेकिंग सच इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी सच एज मे बी लेट डाउन बाय द चेयरपर्सन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो चेयरपर्सन पीसीआई जो है वो इसमें बना सकता है जो इसकी प्रोसीजर के लिए। अब आखिरी चैप्टर है, तो इसमें
मिससेलेनियस प्रोविजंस है कि पहला सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डायरेक्शन इशू कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के दो पावर है, पहला पावर है डायरेक्शन इशू करने का, दूसरा पावर है रूल्स का। तो रूल मेकिंग पावर भी हम देखेंगे बाद में। स्टेट गवर्नमेंट के रूल मेकिंग पावर समाप्त कर दिए गए इसमें। So without prejudice to the foregoing provisions of this act, the central government may give directions on matters of policy to the Press Registrar General in writing from time to time, and the PRG shall, in the discharge of the powers and functions under this act, be bound by such directions. तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन उसको माननी पड़ेगी। तो इस तरह से वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी माना गया है। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज टू वेदर ए क्वेश्चन इज वन ऑफ पॉलिसी और नॉट शैल बी फाइनल। और कोई भी मैटर जो है वो पॉलिसी मैटर है या नहीं है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर है वो फाइनल होगा, जो डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा पीआरजी को। पीआरजी एंड अदर ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। तो पब्लिक सर्वेंट्स का मतलब एक ही प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है भ्रष्टाचार के लिए आईपीसी में, या फिर जो प्रोटेक्शन है फॉर लॉफुल कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो वो पावर्स भी इनको मिल जाते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट के सब पावर्स इनको रहेंगे। कंटेम्प्ट का अलग से एक चैप्टर है जो आईपीसी में। द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल एंड ऑल ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. तो ये 21 में प्रोसिक्यूट भी किया जा सकते हैं। और जो चैप्टर 11 है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी के पावर्स भी उनको सब रहेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और द पीआरजी or any officer or employee authorized by the PRG for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or the rules made thereunder. तो इस एक्ट के या रूल्स के तहत कुछ करते हैं तो उसमें कोई भी उनके खिलाफ कोई सूट या अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब इसमें रूल मेकिंग पावर दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब ये रूल्स किस बारे में रहेंगे वो यहाँ पर दिया गया है। So in particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, namely the manner and particulars of for furnishing an intimation before the specified authority by the printing press under section 3. तो section 3 के लिए rules बना सकते हैं। The manner of registration of a facsimile edition of a foreign periodical under subsection 3 of section 4. तो 4(3) में rules बना सकते हैं। The manner of verification of circulation figure of class of periodicals under clause B of section 6. So 6B में rules बना सकते हैं। The form, fees and manner of making an online application, documents to be furnished and particulars to be set forth under subsection 2 of section 7. So online applications के बारे में rules बना सकते हैं 7(2) में। इसके अतिरिक्त the form in which and the particulars along with which a certificate of registration shall be issued under subsection 5 of section 7. Certificate of registration में क्या लिखा जाएगा ये रूल बना सकते हैं। The manner of making an application and particulars to be set forth therein under subsection 1 of section 8. तो एप्लीकेशन और उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स रहेंगे वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रूल्स में। फॉर्म, फीस एंड मैनर ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड एंड पर्टिकुलर्स टू बी सेट फॉर्थ अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9, ये भी कर सकते हैं। द सर्कमस्टेंसेस एंड मैनर फॉर ऑथोराइजिंग द स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू सस्पेंड और कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 11, तो सस्पेंशन और कैंसलेशन के रूल्स बना सकते हैं। द फॉर्म, टाइम एंड particulars for furnishing an annual statement under section 12. तो annual statement में क्या क्या चाहिए इसके लिए rules बनाए जा सकते हैं। and any other matter which is required to be or may be prescribed under the provisions of this act. तो इस act के तहत बाकी चीजें जो है उसमें भी rules बनाए जा सकते हैं। तो ये section 19 हो गया। मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हेलो, हाँ बेलन जी, आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पीरियोडिकल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये इसमें जो है थोड़ा वो मुझे लगता है बीच में रुक गया है, ये इसको मैं आगे वो कर लेता हूँ क्योंकि मैं कुछ इसमें आगे रुक गया हो दिखाया तो था उसको शायद स्टॉप करने के बाद में आप फिर से खोल लें। 56 पेज नंबर स्टॉप शेयरिंग करके 56 मैं पर इसको है। फिर से स्टॉप करके मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि आखिरी के 3 सेक्शन रह गए हैं, तो आखिरी के 3 सेक्शन देख लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपका 12:30 टाइम भी हो गया है, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करिएगा फिर, ताकि आप क्वेश्चन आंसर भी ले लें, है ना। ठीक है। तो इसको मैं जस्ट अ मिनट। और आनंदीप सर भी कुछ और बात इसमें इस बीच रखना चाहेंगे तो अपनी बात रखेंगे। ओके, तो जस्ट अ मिनट मैं इसको ये कर लेता हूँ।
शेयरिंग में फिर से इनेबल कर लेता हूँ और आखिरी के 3 सेक्शन हम देख लेते हैं। हाँ जी, जस्ट अ मिनट, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है शेयरिंग में, तो मैं उसको हाँ जी, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो मैं इसको ये आगे के जो 3 सेक्शन है वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें लैपटॉप हैंग हो गया है, तो उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें जो आखिरी 3 सेक्शंस है 20, 21, 22 ये हम देख लेते हैं। अब जो भी रूल्स बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दे हैव टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो वो जैसे सभी ऐड में होता है। अब पहले एक पावर ऑफ रिमूवल पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑर्डर है 20 में। कोई भी नया ऐड जब आता है तो उसको लागू करने में यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो 2 साल तक केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो किया जा सकता है, डिफिकल्टी रिमूव की जा सकती है, लेकिन दैट ऑर्डर हैज टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर। तो इसमें यह प्रावधान है कि इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट published in the official gazette make such say provisions not inconsistent with the provisions of this act as appear to be necessary or expedient for removing that for difficulty, and provided that no such order shall be made under this section after the expiry of 3 years from the commencement of this act। तो यहाँ पर 3 साल के लिए पावर दिया गया है। 3 साल के बाद यदि चेंज करना है तो फिर एक्ट को संशोधित करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है, तो अमेंडमेंट लाना पड़ता है। So every order made under this action shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament। तो ये removal of difficulties order है। इसके बाद जो रूल होते हैं, तो ये रूल also have to be laid before the parliament। So this is laying of rules and notification। तो जो भी notification होते हैं, जो rules होते हैं, so every rule made or notifications issued by the central government under this act shall be laid as soon as may be after it is made or issued before each house of parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or modification notification in or both houses agree that the rule or notification shall not be made or issued, the rule or notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or modification। तो ये और नोटिफिकेशन, तो ये वैसी प्रक्रिया है कि जो भी रूल है वो पार्लियामेंट के सामने ले किया जाएगा। पार्लियामेंट चाहे तो उसको एज इट इज या संशोधित फॉर्म में करता है, तो जो संशोधित फॉर्म में करता है तो वैसा लागू होगा मॉडिफाइड फॉर्म में, लेकिन यदि वो मंजूर नहीं होता है तो भी उसके अंदर जो एक्शन ऑलरेडी ले ली गई है वो एक्शन निरस्त नहीं होगी, कैंसिल नहीं की सकती। आखिरी सेक्शन में ये है कि रिपील एंड सेविंग्स है। पहले सब सेक्शन में लिखा है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एट 1867 इज हियर बाय रिपील्ड, तो उस एक्ट को पूरी तरह रिपील कर दिया गया है। अब कोर्ट में जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा, पेंडिंग केसेस, तो ये सेविंग क्लॉज में होता है। सो नॉट विस्टैंडिंग सच रिपील, एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन और purported to have been done or taken including any rule, notification, inspection, order or declaration made or any document or instrument executed or any direction given in any proceedings taken or any penalty or fine imposed under the act already repeated shall, insofar as it is not inconsistent with the provisions of this act, be deemed to have been done or under the corresponding provisions of this act।
तो पहले जो भी एक्शन ली गई है, पेनल्टी वगैरह या रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन, ये कोई भी चीज है, ये कैंसिल नहीं मानी जाएंगी। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत किया गया वो माना जाएगा एज फार एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। एनी declaration including title thereof it's so made and authenticated under the provisions of the act hereby repealed shall be deemed to have been made and authenticated under the corresponding provisions of this act। मतलब कोई भी डिक्लेरेशन किसी ने दिया है तो नया कानून आने के बाद फिर से नया डिक्लेरेशन भरने की आवश्यकता नहीं है। अखबार के जो नाम है तो अखबारों के नाम भी किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी टाइटल है, वो सब नए एक्ट में कर लिए गए, ऐसा ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। Any proceeding pending in any court or at the commencement of this act may be continued बीरेन in जी, that court। बीरेन हाँ जी, जी, आपका हाँ जी, जो ये शेयर कर रहे थे वो हट गया है, तो उसको शेयर करना चाह रहे हैं हाँ, तो कर लीजिएगा। हाँ, हाँ, उसको मैं फिर से कर देता हूँ। एक्चुअली मैं लैपटॉप को फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ, वो लेकिन शायद मुझे लगता रिस्टार्ट है हो तब गया। तक मेरा कंप्लीट ही हो जाएगा, तो ये ग्रुप में बाद में शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक। अब जो ऑलरेडी कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो वहां पर कोर्ट केस टू केस डिसाइड कर सकता है कि उसका क्या होगा, वो पुराने उससे चलते रहेंगे। सो एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may be continued in that court as if this act has not been passed। मतलब जो पेंडिंग केस है उसको नया एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा और कोर्ट जो है वो पुराने कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। The PRG and other officers appointed under the act hereby repealed and holding office as such immediately before the commencement of this act shall on the commencement of this act continue to hold their respective offices under the corresponding provisions of this act unless and until they are removed or superannuated। तो जो पहले प्रेस रजिस्ट्रार था तो वो पीआरजी हो जाएंगे और वो जो भी ऑफिसर थे वो सब के सब पुराने वो तरीके से वो मतलब नए कानून के अंतर्गत भी काम करते रहेंगे जब तक कि वो हटाए नहीं जाते या उनको रिटायर नहीं कर दिया जाता। तो वो मतलब इसे पीआरजी की ऑफिस पर कोई इसमें चेंज नहीं होगा। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट हियरबाय रिपील्ड shall continue to function under the corresponding provisions of this act unless and until the press and registration appellate board is constituted under this act। तो पहले जो पुराने एक्ट में भी एक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड था उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। जब तक रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता तब तक वो पुराने कानून के मुताबिक काम करते रहेगा और बाद में पीसीआई इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकता नया एक्ट पास होने के बाद। मे एनी अपील प्रेफर टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड hereby repealed and not disposed of before the commencement of this act may be disposed of by the press and registration appellate board constituted under this act। पुराने जो केसेस है वो सब नए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड के पास ट्रांसफर हो जाएंगे और वो जो बचे हुए केसेस है उसको नया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड डिस्पोज करेगा। Any penalty payable under the act hereby repealed may be recovered in the manner provided by or under this act, but without prejudice to any action already taken for the recovery of such penalty under the act so repealed। तो कोई भी पेनल्टी ऑलरेडी पेएबल है तो उसको रिकवरी किया जा सकता है जो इम्पोज हो गई है, भले ही वो पिनल प्रावधान अब समाप्त हो गए। Any certificate of registration issued or granted under the act hereby repealed shall continue to have effect after the commencement of the act under the same conditions as if this had not been passed। तो जो भी पहले रजिस्ट्रेशन है दे दिए गए हैं वो सब के सब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वैलिड रहेंगे, उसके लिए फिर से नया एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो वो जब तक उसका मतलब ड्यूरेशन है तो वो सब के सब इफेक्टिव रहेंगे ये मानते हुए कि ये एक्ट पास नहीं हुआ है, तो पुराने सभी सर्टिफिकेट वैलिड रहेंगे। और लास्ट सबसेक्शन ये है, द मैटर्स रेफर्ड टू इन क्लॉजेज ऑफ सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी हेल्ड to prejudice or affect the general application of section 6 of the general clauses at 1897 with regard to the effect of such repeal। ये सामान्य प्रावधान है जनरल क्लॉजेस एक्ट कि रिपील का क्या इफेक्ट होगा, तो उसके बारे में वो जनरल क्लॉजेस एक्ट रेफर किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रावधान है। तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पवनकांत मेश्राम जी, हैंड रेज दिख रहे हैं कुछ? जय हिंद सर।